Here we are, and we are coming up with some new science videos of standard 8, 9 and 10 with exam oriented notes and best explanation. All those videos will have great help for all those CBSE students who are preparing for their next exam. And this video will be also helpful for exams for those aspirants who are preparing for any competitive exams in their respective states or for the central governments, and for basically for the entrance exam of CT and BD students who are going to take their exam in the coming months. Best of luck for them, and I think all these science sections will help them in clearing their exams and all their entrance exams in the near future. So we'll cover one by one topic on each day. So today's topic is metal and non-metal, and we will complete it. So on today's class, we will complete the physical properties of metals, the chemical properties of metals, the reaction of metal with air, and the reaction of metal with water. And on the next day, we will start from the reaction of metal with different acids and bases. So let's start the chapter metal and non-metal. Subscribe and press the bell icon, and never forget to like our videos. That's it. Oh. So let's start this chapter. So metal and non-metals. Okay. So this picture is for visible purpose. So you can see some of the metals and some of the non-metals. Okay. So if we go to the metals, there are bronze, brass, steel, metal, sludge. Okay. That you may or may not have seen. Okay. And there is non-metals, silicon, antimony, sulfur. Okay. And these are the non-metals. So next come to the next phase, that is the periodic table. In the periodic table, how the metal and non-metal and metalloids are situated. So basically the metalloids are making a boundary between the metal and non-metal. You can see, and that is the boron, silicon, germanium, arsenic, stibbium, tellurium. Okay, so all these metalloids are making a boundary between the metal and non-metals in the periodic table. Okay, as you can see. So in this way you can distinguish the metal and non-metals and the metalloids from the periodic table. Okay. So next come to the metals. So when we what is called as metals, and what are the metals? What are different metals? So metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. So these are all the properties that metals always consists of. Okay. So what are the example of metal? Example of metal are iron, aluminium, silver, copper, gold, platinum, lead, potassium, sodium, calcium, and magnesium, etc., etc. So basically in this chapter we will discuss all about the metals. Okay, today we will discuss all about the metals, and on the other day we will discuss all about the non-metals. So how metal reacts with the air, water, and acid. Also with the metallic oxide, how the metallic oxide reacts with the different kind of salt solutions. Okay, so we'll get to know in this class. Okay, so let's start about from the metal. Okay, so metal are the element which form positive ion by losing electrons. So you can see here, metals are the elements which form positive ion by losing electrons. So how they are forming positive ions? So you can see, when we write any metal, suppose we are writing calcium. So are we writing Ca plus or Ca minus? We are always writing Ca plus. Okay, similarly for copper it is also Cu plus. Okay, so all the metals are forming positive ions. As of now we know. Okay, so thus the metals are also known as electropositive element. So metals are also known as electropositive elements. So this is the basic thing that we get to know about the metals. So again, सबको बात
तो नेक्स्ट चैप्टर को चलो. So next is physical properties of metals. So from the standard 8, next in standard 9, and now in standard 10, you are getting to know all about the physical properties of metal. So what are the different physical properties of metals? You already know. Okay. So we'll just discuss some of the points about physical property. Okay. So I have written all the properties of metals physical property. So you can see. So the first one is hardness. So hardness क्या होता है? And how can we define the hardness of a metal? So now look at. So most of the metals are hard except alkali metals. So what are the alkali metals? You know what are the alkali metals? The sodium, potassium, these are the alkali metals. Okay. And also the lithium, because they are light in nature. Okay, they can also easily be caught by the knife. Okay, these are the alkali metals. Okay, they are soft also, and these can be caught by using knife. So the first property जो हमको ये पता चला कि metals का hardness एक property है. So second property, strength. So what is strength? Most of the metals are strong and have high tensile strength. Okay, so ये भी एक property है जिसको याद रखना है. ये इतना important नहीं है, लेकिन याद रखना है कि strength एक property है, physical property. Because of these, big structures are made using metals such as copper, iron, except sodium, potassium, which are soft metals. Okay, so by using those metals, okay, we also build some of the big structures like any kind of building or anything we made using the metals. But except some of the metals which are not used in building big structures like building or anything else. Okay, so what are those metals which are not so strength? So you can see the copper, iron, sodium, as you know, sodium, potassium, lithium, all are very soft. Okay, so they are not used in making any kind of big structures. Okay, so they have less in strength. Okay, उनका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है और जो एलिमेंट मेटल है उनकी तरह. ओके, सो थर्ड में आती है स्टेट. तो स्टेट क्या है? सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी. मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी. सो इसको भी याद रखना है, मतलब कि all the metals are in solid state. So next come to sound. So how the metals produce sound when they are beaten with any kind of a solid object? Okay, will they produce any sound or not? So metals produce a ringing sound when they are beaten by any other metal or by any solid. Okay, so this property of metals is called as sonorous. Metals के इसी property को हम sonorous कहते हैं. Okay, so sound of metals is also known as metallic sound. The sound of metal is also known as a metallic sound. This is the cause that metal wires are used in making musical instruments. So इसी कारण है कि हम metals को कहाँ पे यूज करते हैं? Musical instrument पे भी यूज करते हैं. Okay, so you can know there are different musical instruments like guitar, sitar. Okay, so in all of those musical instruments we use metallic object or metallic wire or any kind of metallic so the metal is used in all those musical instruments. So next come to all other properties. So the property number 5 is density. So ये भी एक property है metal का. So most of the metals have a high density because they are all in solid state. So हमको पता भी है जो भी चीज मतलब जो भी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में है उसका डेंसिटी हाई होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी. सो मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम क्या होता है यहाँ पे इफ वी बीट ए मेटल, अगर हम एक मेटल को ऐसे ही बीट करेंगे इफ विल बीट इट कंटिन्यूसली देन द मेटल विल फॉर्म ए थिन शीट. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी. अगर हम एक मेटल को ऐसे ही कंटिन्यूसली बीट करेंगे तो इट विल फॉर्म ए थिन शीट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी. सो इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? वेयर वी यूज दिस प्रॉपर्टी? बेसिकली वी यूज दिस प्रॉपर्टी इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स.
as you know, we are making some thin plate of gold ornaments. So how we are making those kind of ornaments? Because metals have this property, that is malleability. That is how we are making some different shape and size of ornaments. Next is ductility. So इस प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे, द प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. सो जैसे ही मैलेबिलिटी है वैसे ही डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है. सो इन डक्टिलिटी मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर. दैट मीन्स if we draw any metal, okay, if we draw any metal, it will form a thin wire. You have seen there are many wires, okay, that are made from copper or silver, okay. So how they are made? Because they have the property ductility property. उनका एक प्रॉपर्टी है जो डक्टिलिटी कहा जाता है, इसीलिए they can be made into thin wires by drawing them, okay. So ये दोनों प्रॉपर्टी malleability and ductility, these are very much important, okay. So malleability, one is malleability, other one is ductility, okay. Next is melting and boiling point. So metals का melting and boiling point क्या होता है? So metals have generally high melting, they have high melting because they are in solid. So when they will convert into liquid state, they will be melted. That means they have high melting point also, and they have high boiling point also. So metals have both high melting and high boiling point. इसको इजी से याद रख सकते हैं हम. Except sodium and potassium metal which have low melting and low boiling point. So हमको पता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्ट मेटल है. सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके. सो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में याद रखना है, ओके. सो केमिस्ट्री मीन्स एक्सेप्शन. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, जिसका लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके. सो ये बात भी याद रखना है. नेक्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन का मतलब क्या है? If they conduct electricity or heat. Yes, they conduct heat and electricity. So metals are good conductor of heat and electricity. So this is the cause that many kind of electric wires are made from metals like copper and aluminum. They are the good conductors. Copper and aluminum are used in making wires. Why? Because they are the good conductor of electricity. Also gold is also one kind of the best conductor of electricity. But they are not, gold is not used. Why gold is not? Because it is costlier, okay. So that is the reason why copper and aluminum are used for making wires that we use in our home or in any kind of electrical supplies. So next is color. So what is the color of the metal? Metal का color क्या होता है? ये भी सब फिजिकल प्रॉपर्टी में जाता है. So फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है वो दिखते कैसे हैं, सुनाई कैसे देते हैं, और उनके शेप और साइज कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं. सो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में जाता है. सो नंबर 10 इज ऑल अबाउट कलर. सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर. यू हैव सीन दैट दे आर ग्रे इन कलर, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे भी है. केमिस्ट्री का मतलब ही एक्सेप्शन है. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है ना, गोल्ड और कपर. सो गोल्ड एंड कपर आर एक्सेप्शन बिकॉज दे डू नॉट हैव द कलर ऑफ ग्रे कलर. उनके पास ग्रे कलर नहीं. ओके. सो गोल्ड का कलर आपको पता है वो गोल्डन कलर है, कपर कलर वो ब्राउनियन कलर है, ओके. सो दे हैव द डिफरेंट कलर्स, नॉट लाइक द अदर मेटल्स. सो नेक्स्ट कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया. सो उसके बाद आओ केमिकल प्रॉपर्टी. सो केमिकल प्रॉपर्टी में 3-4 पॉइंट है एंड वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोस 3-4 पॉइंट्स, ओके. डोंट ट्राई टू रिमेंबर, just understand. Alkali metals. So if we'll see alkali metals, हमने पहले भी पढ़ा था alkali metals कौन कौन से हैं. So lithium, sodium, potassium, all of these are alkali metals and they react vigorously with water and oxygen. Vigorously they react with water and oxygen. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, if we'll openly keep the sodium and potassium in air, only in air, they will burn. They will try to burn or burst into fire. Okay, so they are so much reactive elements. Okay, they have high reactive power. किसका? सोडियम का और पोटेशियम का.
both have high reactive power. They can easily react with air and water. So how will we say, conserve them? Okay, so we are conserving them, or we are keeping them in kerosene. Okay, that is the reason why we are keeping the sodium and potassium, both of these metals, in kerosene, in order to save them from reacting with water and oxygen. ओके, सो ये अल्काली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, ये नहीं करता. स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है. ओके, सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. ओके, लेकिन आप सबको पता होगा कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसे ही कोई वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये अगर रिएक्ट करेगा तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा. स्टीम का मतलब आपको पता है, जो वेपर होता है. ओके, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, फेरम एंड जिंक. सो वो कहाँ पे रिएक्ट करते हैं? वो भी स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, दे ऑल्सो रिएक्ट विद द स्टीम. And then is copper, silver, platinum and iron. Okay, they do not react with water or dilute acid. So these are the metals that you have to know that they do not react with water or dilute acid. ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. They react with air, but they do not react with water or dilute acid. Dilute acid के बारे में आपको पता है, मतलब कि जो एसिड, जहाँ पे क्या होता है, एसिड का मात्रा कम होता है, मतलब द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज लेस देन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, दैट इज ए डाइल्यूट एसिड. सो मतलब यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एंड आयरन. ओके, सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड. सो नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. सो पहला आ गया, अब रिएक्शन आ गया, इसको अच्छी तरह से समझना है. नेक्स्ट विल गो वन बाय वन द रिएक्शन ऑफ एयर विथ डिफरेंट मेटल्स. हाउ एयर रिएक्ट्स विथ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स. अगर मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? सो व्हाट वी विल फाइंड एज ए प्रोडक्ट. सो यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल सा रिएक्शन है, दैट इज द मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ है? Product metal oxide. So when metal and oxygen are reacting, they are forming metal oxide. So metal oxide को हम हमेशा basic भी कहते हैं. Okay, so that is always basic in nature. So metal and oxygen, when the metal and oxygen react, they form metal and oxide. Okay, so I have prepared this note much more clearly, and I have not omitted a single kind of point that will not be in your exam. Okay, so now you can see sodium and potassium are kept immersed in kerosene. Okay, so ये point भी हमने पहले पढ़ के आए हैं. तो you can see here sodium and potassium both are kept or immersed in kerosene so that they will not react with the air. So you can see, so if they will kept open, so what will happen? If potassium reacts with the oxygen, अगर potassium oxygen के साथ react करेगा तो होगा क्या? सो पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. आपको वैलेंसी आनी चाहिए तो प्रोडक्ट लिखने के लिए. ओके, सो टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला. सो यहाँ पे पोटेशियम का, सो फॉर पोटेशियम, ओके, इसका वैलेंसी कितना है? 1. फॉर ऑक्सीजन इसका वैलेंसी कितना है? 2. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट और द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड? दैट विल बी K2O. So that is the reason why the potassium oxide is written as a K2O. And यहाँ पे भी लिखा हुआ है vigorous reaction, because they will react vigorously. They will burst into fire. Next is magnesium, aluminium, zinc and react slowly with air and form a protective layer that prevents corrosion. Okay, so we can see, so magnesium oxygen के साथ react करता है, तो it will form magnesium oxide. When magnesium reacts with oxygen, it will form magnesium oxide. So here also magnesium bonds with white dazzling light. So ये point को भी याद रखना है. The magnesium bonds with white dazzling light.
व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये तो प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये भी एक सवाल हो सकता है, 1 मार्क का सवाल। मतलब मैग्नीशियम विल बर्न विथ व्हाइट डेजलिंग लाइट, ओके, सो इट विल गिव ए व्हाइट डेजलिंग लाइट। सो नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका प्रोडक्ट होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे वैलेंसी एक्सचेंज करके, ओके। सो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, सो बोथ ऑफ द वैलेंसी विल एक्सचेंज, विल राइट इट एज Al2O3, ऐसे ही हम लिखेंगे, ओके। सो ये गया सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन। सो ये कैसे होता है, सोडियम का भी रिएक्शन वही होगा, सोडियम व्हेन सोडियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ओके। सो ये भी होगा Na2O। सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड, ओके, ये सब के सब ऐसे ही ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट आता है सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। सो सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, ये सब एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो कौन कौन सा है, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, ओके। सो मुझे लगता है आपको ये when air react with metals, all of these are clear. Now we will go to when metals react with water. So reaction of metal with water. So यहाँ पे हमको ये समझना है when metal forms respective hydroxide, metals forms respective hydroxide and hydrogen gas when reacting with water. If metal will react with water, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल आल्सो बी रिलीज्ड, ओके। सो ये याद रखना है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। व्हेन द मेटल इज रिएक्टिंग विथ एयर, जब एयर के साथ रिएक्ट करता था तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता था, मेटल ऑक्साइड, ओनली मेटल ऑक्साइड। बट हियर हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग एंड ऑल्सो मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो फॉर्मिंग। सो हाइड्रोक्साइड का सिंबल आपको पता है, OH। सो जो भी मेटल होगा उसके साथ ये OH ऐड होकर रहेगा एज ए सफिक्स, ओके। सो वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, ओके। नेक्स्ट, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सो देयर आर most of the metals, they do not react with water, as like they react with air, but there are many of the metals they do not react with water. Next is however alkali metals react vigorously with water. मतलब जो अल्कली मेटल्स होते हैं, तो अल्कली मेटल्स मतलब कौन कौन से हैं अल्कली मेटल्स, जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सो ऑल आर दिस अल्कली मेटल, they react vigorously with water, okay। So they react vigorously with water. And the next is a reaction of sodium metal with water. So ये इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पहले से ही पता है सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव। अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सो इट विल बर्स्ट इनटू फायर, ओके। अगर हमको भी यहाँ पे पता है कि it will form metal oxide, metal hydroxide and hydrogen. So here when sodium reacts with water it will form sodium hydroxide and hydrogen. So hydrogen gas will be released, but what the product will be formed, the product will be sodium hydroxide. So मुझे ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है या एसिड? अगर हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये जरूर क्या होगा, बेस ही होगा, ओके। सो sodium and water will form sodium hydroxide and hydrogen gas will be released. So आपको इसको कैसे लिखना है, कैसे और याद कैसे रखना है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, आपको इसे ही पता है। अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेटल हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे मेटल कौन है, मेटल सोडियम है, सो हाइड्रोक्साइड जस्ट विल बी यूज्ड एज ए सफिक्स, सो NaOH फॉर्म होगा, तो उसके साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस विल बी ऑल्सो रिलीज्ड। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ओके। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, सो वहां पे सेकंड नंबर पे देखो, सो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर। सो
तो अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा? तो पहले हमने क्या देखा, सोडियम। पोटेशियम भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा, अगर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। ओके, सो उसके साथ ही साथ क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन गैस विल बी ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, सो हाइड्रोजन गैस विल बी ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, ये पोटेशियम का रिएक्शन है वाटर के साथ। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। अगर कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सो यहाँ पे प्रोडक्ट वही फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे 2 क्यों है? OH के साथ 2 क्यों है? ये जो 2 है ना, वो इसका वैलेंसी है। किसका वैलेंसी? कैल्शियम का। यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, 2। और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आपको याद रखना है बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स को, और पॉलीएटॉमिक आयन्स के वैलेंसी को भी याद रखना है। तो इसका वैलेंसी है 1। अगर ये दोनों अपनी अपनी वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CaOH2। वैसा ही फॉर्म होता है। और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही होगा, हमको ये पता है सिंपल इक्वेशन में। जो अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कंपल्सरी रिलीज होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन भी फॉर्म होगा कोई एक मेटल के साथ। ओके, सो आपको ये इजीली याद रह जाएगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3। सो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विथ वाटर। अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है मैग्नीशियम कौन सी वाटर के साथ रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम ओनली हॉट वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? द प्रोडक्ट विल बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म MgOH2, और हाइड्रोजन गैस विल बी ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, सो यहाँ पे 2 कहाँ से आया? सो ये मैग्नीशियम का वैलेंसी है, तो वहाँ से आया। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे। सो आपको ये इक्वेशन लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी अगर आपको ये वैलेंसी समझ आती है। और सिंपल इक्वेशन का जो मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या फॉर्म होगा, अगर ये आता है तो आपको इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो नेक्स्ट आता है व्हेन मैग्नीशियम इज पास्ड ओवर, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर मैग्नीशियम मेटल। मैंने कहा था पहले से ही मैग्नीशियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो स्टीम को हम वाटर यहाँ पे क्यों लिखें? क्योंकि स्टीम तो वाटर ही है, जो वो वाटर वेपर को हम स्टीम कहते हैं, तो स्टीम भी वाटर ही है। सो इट इज ऑल्सो विद द फॉर्मूला ऑफ वाटर। सो वाटर का फॉर्मूला ही लिखेंगे यहाँ पे स्टीम के जगह। सो व्हेन द मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद द स्टीम, what it will form? It will form मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज रिटन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड? ये तो वाटर है, लेकिन यहाँ पे इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट में नहीं है। अगर ये लिक्विड स्टेट में नहीं है तो जो आयन्स फॉर्मेशन हुआ है वाटर से, वो हाइड्रोजन H+ आयन एंड OH- आयन फॉर्म नहीं हुआ है। अगर OH- आयन स्टीम से नहीं फॉर्म होगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आएगा कहाँ से? सो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इसीलिए नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है यहाँ इसलिए। ओके, अगर ये लिक्विड होता, ये स्टीम अगर लिक्विड होता तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। ओके, आज देयर इज नो हाइड्रोक्साइड आयन इज फॉर्म, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म में। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, as usual the hydrogen gas will be released when any metal will react with the water. Okay, so as the steam is not in liquid form, so यहाँ पे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। Okay, so ये that is it, this point is very much important. अगर मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? अगर आप लोगों ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख के आ गए तो वो रंग मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख के आना पड़ेगा। सो जाते हैं और अदर पॉइंट्स पे। सो नाउ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विथ वाटर। सो अगर एल्यूमिनियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट विल फॉर्म?
So what will be the products? So you can see here reaction of aluminum metal with cold water. So aluminum cold water के साथ react करेगा. Is it too slow to come into notice? अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा एलिमेंट एल्यूमिनियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट इज टू स्लो टू कम इनटू नोटिस. बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम मेटल, अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, इफ स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम मेटल, ओके, एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर स्टीम को हम पास करेंगे, ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल फॉर्म. यहाँ पे भी वही बात हुआ कि यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने के बजाय. सो व्हाई इट इज फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड? रीजन वही है बिकॉज ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये वेपर स्टेट में है. सो OH माइनस आयन विल नॉट बी फॉर्म. अगर OH माइनस आयन फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे OH लिखेंगे कहाँ से? सो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही लिखेंगे. सो Al2O3 ही लिखा जाएगा इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा. ओके, सो यहाँ पे अगर कोई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख के आएगा क्योंकि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको तो आप लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख के आ जाएंगे तो यहाँ पे रॉन्ग ही होगा. सो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है Al2O3. सो हाउ Al2O3 इज फॉर्मिंग? सो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है. द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है. So both aluminum and oxygen have just exchanged their valency. So that is the reason why aluminum oxide is written here. And the वैसे ही hydrogen is also releasing. और यहाँ पे बहुत सारे balance किए हुए हैं. Okay, so the equation is balanced. Okay, so you also have to balance the equation also. So ये complete होता है aluminum का water के साथ reaction. उसके बाद आते हैं हम नंबर 5 पे, reaction of zinc metal with water. So all these metals reaction with water is very much important. Okay, so if we'll just remember magnesium और 2-3 एलिमेंट का रिएक्शन याद रख के अगर एग्जाम में बैठ जाओगे तो नहीं होगा. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड एवरी मेटल, हाउ एवरी मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर. सबका रिएक्शन और सबका तरीका वेरी मच डिफरेंट. ओके, एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग ए यूनिफाइड प्रोडक्ट, दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. कहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. ओके, सो दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट काइंडली. सो यू हैव टू नो दैट एंड अंडरस्टैंड दैट. सो अगर जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सो जिंक मेटल प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड. सो ये भी ऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है लेकिन ऑक्साइड फॉर्म करता है. एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट बिकॉज इट इज only reacting with the steam. And zinc does not react with cold water. Zinc does not react with the cold water. So यहाँ पे zinc वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. मतलब ये जो वाटर है ना, ये वाटर है, स्टीम है, मतलब कि वेपर स्टेट में है. ओके, एंड यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हुआ है और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही होगा. ओके, सो यहाँ पे और जो एल्यूमिनियम के बारे में हमने पढ़ा था, तो एल्यूमिनियम के बारे में जो पढ़ा था, तो एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या? अगर क्वेश्चन है आपकी, इज द एल्यूमिनियम रिएक्टिंग विथ कोल्ड वाटर और वाटर, यू हैव टू राइट इट एज यस इट इज रिएक्टिंग बट इट इज वेरी स्लो. सो दैट इज द रीजन व्हाई इट रिएक्ट स्टेडीली विथ द स्टीम. ओके, सो नेक्स्ट कम टू नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर. रिएक्शन ऑफ आयरन विथ water. So if you can try to screenshot it and you can save it as your notes. Okay, so these are very much important things. So reaction of iron with cold water is very slow and comes into notice after a long time. Okay, so हमने जैसे ही पढ़ा था कि एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन इज वेरी स्लो. सो दिस इज द सेम थिंग इज हैपनिंग. आयरन का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन इज वेरी स्लो. एंड यू विल नोटिस एनी काइंड ऑफ चेंज ऑन द रिएक्शन. अगर आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा और प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो दिस प्रोसेस इज वेरी मच स्लो एंड इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम. सो अगर आयरन कोल्ड वाटर के साथ
फॉर्म नहीं करता है, अगर लॉन्ग टाइम लगता है, तो आयरन हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है या नहीं, ये हमको देखना है। सो यू कैन सी हियर आयरन फॉर्म्स रस्ट। आयरन क्या फॉर्म करता है? रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो मॉइस्चर भी वाटर पार्टिकल होते हैं, जो मॉइस्चर के अंदर भी वाटर पार्टिकल होते हैं। ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, एंड आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म बाय पासिंग स्टीम ओवर आयरन मेटल। अगर स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, ओके, इफ द आयरन इज पास्ड ओवर द स्टीम और steam is passed over the iron, okay, it will form iron oxide. Okay, iron oxide and hydrogen gas will be also released. So यहाँ पे जो iron oxide को लगे, so iron oxide Fe3O4 इसको भी ऐसे ही याद रखना है। so यहाँ पे Fe3O4 है, so बहुत सारे भी है, Fe2O3 भी है, लेकिन यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 ही फॉर्म करेगा। ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है और समझना है। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम और मैग्नीशियम डू दे रिएक्ट विथ वाटर एंड व्हाई दे फ्लोट ओवर इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पे आ सकता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हेवियर देन वाटर, they are heavier than water but still float over water, and why? अगर ये मेटल दोनों हैं, दोनों के दोनों मेटल हैं, and they are heavier than the water but they still float over the water, वाटर के ऊपर ये फ्लोट करते हैं। why they float over the water, रीजन क्या है? so इस रीजन को हम यहाँ पे समझते हैं। so both calcium and magnesium float over water, both of the metal react with the water or float over the water because hydrogen gas is evolved when these metals react with the water. अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ये बबल्स के फॉर्म, ऐसे ही बहुत सारे बबल्स होंगे जो इस रिएक्शन से निकलेंगे। सो द बबल्स विल स्टिक टू द मेटेलिक सरफेस। अगर ये आयरन का सरफेस होगा, सो आयरन का सरफेस के दोनों तरफ ऐसे ही मेटल जो बबल्स हैं, हाइड्रोजन का बबल्स ऐसे ही स्टिक हो जाएंगे। सो देयरफॉर दे फ्लोट ओवर इट। सो दिस इज द रीजन व्हाई अगर कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, ओके, सो बोथ ऑफ द मेटल्स विल फ्लोट ओवर वाटर। रीजन यही है, calcium and magnesium both will float over water because the hydrogen gas which is released from the water, they will be attached to the metallic surface. As they will attach to the metallic surface, they will made the metallic surface to float over the water. So ये reaction भी आप यहाँ पे देख सकते हो, metal is reacting with water, so that means calcium is reacting with water, calcium hydroxide is formed। यहाँ पे 2 भी ऐसे ही, क्यों कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, सो इट इज CaOH2 एंड इट इज इन aqueous स्टेट और aqueous सॉल्यूशन स्टेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और CaOH2 को हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सो हमने पहले से भी पढ़ा है, most of the elements or most of the metals do not react with water. Most of the metals, okay, most of the metals do not react with water or they react very slowly. Okay, बहुत सारे metals के बारे में हमने जाना कि बहुत सारे metals steam के साथ react करते हैं और बहुत ही कम ही मेटल हैं जो कि अल्काली टाइप का मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, सो लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। तो ऐसा ही है, ऐसा भी है कि स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं ऐसे भी मेटल हैं। तो कौन कौन से हैं? वो लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ऑल दिस मेटल्स ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। ये तो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। द स्टीम इज इन हाई टेम्परेचर, स्टिल दे डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। Thus the order of reactivity of different metals towards water may be written as। so इसलिए
we can write the reactivity of different metals. You can see first is potassium, sodium, calcium, magnesium. Okay, and this is not Ae, this is Al. Okay, that is aluminum, then it's zinc and iron, lead, copper, silver and iron, that is gold. So I think today you have really liked the class that we have completed today. So today we have completed the reaction of metal with air, the reaction of metal with acid, and also in this last page we have completed about why there are some metals that float over water. Okay, so these are the end of the class for today. So from the next day we will continue the reaction of a metal with different acid, base, and there are different metallic oxides, how they react with different solutions. Okay, so this is the end for today, and so please subscribe to our channel, and thank you.